Let us start the first lesson from the book Footprints Without Feet. Supplementary reader, Footprints Without Feet. First lesson, A Triumph of Surgery. सर्जरी लेसन का मीनिंग है चिकित्सा कक्ष, ट्रीटमेंट रूम। ऑपरेशन सब नहीं समझना, ट्रीटमेंट का जो रूम होता है तो इसी को कहता है सर्जरी। वर्ड मीनिंग अलग है। जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पर है ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पर सर्जरी हुआ करता है, वो नहीं है मीनिंग। या जहाँ इसको इलाज देता है उस कमरे के लिए इस्तेमाल किया सर्जरी। ट्रायम्फ यानी विजय ऑफ सर्जरी, ट्रीटमेंट का विजय, यूँ करके हम मीनिंग समझ सकता है। सो सप्लीमेंट्री रीडर, so it will be very difficult to guess the questions from the lesson because there are no questions. That is that we expect get from the back side of the lesson. So we have to assume the question and answer. We have to find out the question and we have to find out the answer. Objective type, short answer and long answer. So we have to assume everything. So be careful. After completing the lesson, you have to frame the questions and answers. So there is no need to see the question that is at the back of the lesson. Normally we are depending upon the questions that are given in the back of the lesson. If you learn the lesson, if you read the lesson as much as you can understand and everything, there is no need of questions that will come or appear at the back side of the lesson. This book is framed like that. We have to understand the lesson, understand the things and frame the questions and answers of possible questions by yourselves. Okay, the triumph of surgery. So let us start the lesson. The triumph of surgery. Triumph and Vijay. Or surgery means Chikitsa Kaksha. It is not the place where surgery is going on, operation is going on. और चिकित्सा का विजय, यही है इसका मतलब. Simply understand. Read the lesson. Try to understand the matter. Global and verbal ideas. At the back side there is no question. So we have to frame the questions and answers, objective type, main questions and short answer type. Normally we are depending upon the questions that will come at the back of the lesson, and in this book supplementary reader there are no such questions given at the back of the book or lesson. So we have to frame the question, we have to assume the possible questions that will come from the lesson, whether it is objective type, a short answer or long answer type. It is depending upon you. So I will give you the hint, and according to that hint you have to frame the questions and answers. Okay, let us start the lesson. A triumph of surgery. Tricky, a small dog. ट्रिकी नाम का एक स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ज़्यादा खिला के उसको मोटा कर दिया उसके मिस्ट्रेस यानी मालिकिन, ऑनर. ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरिनरी सर्जन.
जब माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया तो वो एक वेटनरी सर्जन का मदद ले लिया। शब्द लिखते हैं वेटरिनरी, लेकिन पढ़ना है वेटरिनरी। एक डॉक्टर का सलाह लिया, जानवरों का डॉक्टर को कहते हैं वेटरिनरी डॉक्टर। यहाँ पर्टिकुलरली इज ए सर्जन। द वर्ड सर्जरी हैज़ नो रिलेशन विथ दिस वर्ड सर्जन। सर्जरी हियर मीन्स ट्रीटमेंट रूम, treatment room. Okay. So he falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. वेटरिनरी लिखते समय होना चाहिए, पढ़ते समय वेटरिनरी सर्जन। ओके। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। ट्रिक्की को देख के मैं चिंतित होगी। आई लिखता है, इसका मतलब खुद ही बता रही ये सारी बातें। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. ये डॉक्टर स्वयं हमसे कहते हैं, I had pulled up my car. Pulled up means stopped my car when I saw him in the street with his mistress. उसको उसके ओनर के साथ जब बाहर देखा तो मैंने मेरा कार रोक ली। And I was shocked at his appearance. मैंने उसका हाव भाव देख के शौक हो गया। He had become hugely fat, overweight, इतना मोटा हो गया कोई हद नहीं। Like a bloated sausage with a leg at each corner. Like a bloated, bloated means swollen, swollen means सूजन आया हुआ। कैसे? सॉसेज। सॉसेज एक तरह का मीट है, मिक्सड मीट स्टफ है। वो जब पकाते समय एकदम गोल गोल सा दिखाई देता है और फूलता है, तो इस तरह से उसका टांगे फुला हुआ नज़र आया, बॉडी का कई पार्ट से। एट ईच कॉर्नर, उसके पैरों के एक एक कोने में, शरीर के एक एक कोने में ऐसा सूजन आया हुआ जैसा दिखाई दिया, इतना मोटा हो गया। एंड इस आइस ब्लड शूट एंड रूमी, उसका आँखों देखो बिल्कुल ब्लड शॉट मीन्स रेड, रूमी मीन्स वाटरी, आँखों से पानी, आँखें लाल। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो सीधा देखता है, मोड़ा नहीं जाता, गर्दन मोड़ी नहीं रहे। एंड इज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसका जो जीप है मुंह से लटका हुआ है। जा मीन्स जबड़ा। So I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैंने उसके ऑनर के साथ जब बाहर देखा तो मैं एकदम शौक हो गया, क्योंकि इतना मोटा हो चुका था। And he had become hugely fat like a bloated sausage with leg at each corner. जो मीट स्टफ जैसे तैयार कर देते हैं उस टाइम जैसे मोटा हो जाता है, उसका शरीर के हर भाग, पैरों पे, कोने में, हर जगह में इस तरह से सूजन आया हुआ जैसा दिखाई दिया। एंड इस आइस ब्लड शॉट एंड रूमी, उसके आंखों से पानी बह रहे थे और आंखें बिल्कुल लाल थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो मोड़ के देख नहीं पाता है, और स्ट्रेट अहेड, वो सीधे देखता है। तो स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, घूरते सीधे। एंड इज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसके जीभ मुंह से बाहर लटका हुआ नजर आया। मिसेस पम्फ्री, ऑनर का नाम यही है। मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, डॉक्टर से बताने के लिए वो जल्दी निकला है। ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट, डॉक्टर का नाम है हैरियट। उसे कहा ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स एनर्जीलेस, कोई एनर्जी नहीं है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी,
बिल्कुल ऐसा लगता है वो हिल ही नहीं सकता, एनर्जी नाम का चीज़ ही नहीं है मोटापे की वजह से। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन हो गया, मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाना खिलाया ताकि वो जल्दी ताकतवर बन जाए। बस यही किया साहब, वो बिल्कुल एनर्जी नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खिलाया। टू बिल्ड अप हिम, टू बिल्ड अप मीन्स टू रिकवर। वो दिया तो यही है, सब माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। बताओ मैंने क्या क्या दिया। सब माल्ट, कुछ अनाज, माल्ट मीन्स ग्रेन, एंड कोड लिवर ऑयल। कोड इज अ टाइप ऑफ फिश, उसका विटामिन के लिए उसका ऑयल बहुत फेमस है, और उसमें से कुछ मैंने उसको दिया। और इसके अलावा हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को थोड़ा हॉर्लिक्स दिया है ताकि उसको आराम से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खाने का बीच में इस तरह का एक्स्ट्रा चीज़ भी देने के बाद भी कहते हैं नहीं नहीं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो ये तो यूँ ही है। कुछ लोग होता है ना फुल टाइम खाते रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका पाचन क्रिया बिल्कुल ओके है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और खाने के बाद पाचन क्रिया सही होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन कुछ लोग यूँ ही खा लेते लेकिन धीरे धीरे पछताए तो बॉडी में कोई अफेक्ट नहीं करेगा। और इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग लाइक दिस, प्लीज स्टॉप दैट। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर ने पूछा, मैंने आपको बताया था ना इसको मीठा आइटम मत देना, कम कर दिए क्या। वो आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हार्ड टू रिलेंट। हाँ तो मैंने कर तो लिया था लेकिन तो और कमज़ोर नज़र आया, फिर मैं देना शुरू कर दिया वापस। रिलेंट मीन्स एग्री, यहाँ का मतलब छूट देना। एंड ही डस लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। उसको क्रीम केक और चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद है, मैं वो भी दे दिया। ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आदत है ना आइसक्रीम खाने का, क्रीम केक खाने का, जो बर्थडे केक वगैरह आता है ना, अंदर तो ब्रेड कम और ऊपर इतना क्रीम लगा के रखता है, वो चाट लेते हम, लेकिन दैट इज़ हार्मफुल। मैं तो एडवाइस दूँगा केक खाना ही नहीं, whether it is creamed or not, whatever it may be, leave that, क्योंकि ये सबसे नुकसान करने वाला चीज़ है। क्योंकि वो क्रीम ही हम पूरा चाटते हैं कि वही नुकसान ज़्यादा करते हैं। नीचे जो ब्रेड है वो काट के खा लो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा तो खाओ मत, केक खाओ मत, कोई सा भी केक हो, खाना नहीं है तो कोई चॉकलेट केक हो, केक है, सब कुछ बोलते, सभी नुकसान करने वाला चीज़ है। सो लीव इट, दैट वाज द ट्रबल। प्रॉब्लम तो यही हुआ, हियर्ड, दैट वाज द ट्रबल। I did for a bit but he seemed to be so weak I had to relent। मैंने कोशिश करके देख लिया लेकिन और कमज़ोर दिखाई दिया, मेरा दिल दुख गया तो मैंने उसको वापस खिलाने लगे। He does love cakes and chocolate, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, उनको ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने दे ही दिया। आपने मना तो किया था लेकिन मैंने सोचा तो खाने दो, दे दिया। आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको इनकार करने में टॉलरेट नहीं कर सकता। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो मैंने फिर से डॉग को देखा। दैट वाज द ट्रबल। आपने यही गलती किया, मैंने मना करने के बाद भी आपने वो खिलाया ना। थोड़ा बहुत मन लगा के रखना पड़ता है, मन कठोर बनाना पड़ता है कुछ काम के लिए। ट्रिक्की इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिक्की का एक ही कमजोरी ये हो तो ज़्यादा लालची है खाने के मामले में। कुछ जानवर ऐसा होता है खाने में इतना लालच दिखाता है, झपट के खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाना दे दो तो मना नहीं करता. ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. अब दिन में रात को कहीं भी टैकल करो, सोल्व करके उसको खाना खिलाओ, वो खा लेते, मना करने का नाम ही नहीं. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड नॉट मैंशनड. इतना तो ये बताया, बाकी कितनी चीज़ें बताई नहीं, और मैंने कितने चीज़ बताए, उसमें कितने चीज़ का फॉलो किया इसने. ये दोनों कंपेयर करके देखे तो मालिक ने उसके साथ गलत किया, ऑनर ने उसके साथ गलत किया. हमको भी कुछ लोग, अगर हमारे घर पे भी जो पसंद वाला चीज़ तो यूं ही दे देते, यूं दे देते. वो आदत वाले, हमारा खाने में कंट्रोल रखो, जब खाना आए तभी खाओ, आलतू फालतू चीज़ें उड़ा के खाना आनो. हानिकारक है, एक ज़माना था कुछ भी खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आजकल मिलने वाला चीज़ ही ऐसा है तो वो नुकसान ही करता. कभी समोसे, गोलगप्पे, वो ये चाट वाट, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है. घर पे रोटी तो मिलता है, बहुत है. ये आलतू फालतू चीज़ें करके हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे शरीर के अंदर. अभी तो पता नहीं पड़ेगा, उसका नतीजा बाद में निकलेगा. सो व्हाट यू वांट यू टेक दैट ओनली. थोड़ा बहुत कंट्रोल खुद को भी रखना पड़ेगा. देने वाला देगा, चाहने वाला चाहेगा, लेकिन हमें खुद को देखना है. मुझे अनावश्यक रूप से चीज़ें नहीं खानी है. समझ में आ रहे हो ना. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. अच्छा, उसका एक्सरसाइज के क्या हिसाब किताब है. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी. जैसे मेरे साथ ये घूमने आए ना, बस वो तो है. बट हॉडकिन द गार्डनर has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. हमारा जो माली है ना, गार्डनर हॉडकिन, वो कुछ परेशानी की वजह से इन दिनों में आ ही नहीं रहे, और इसलिए there has been no ring throwing lately. रिंग थ्रो करके उसके साथ थोड़ा टाइम बिताता था, वो आजकल बिल्कुल ही बंद कर रखा है. सो वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू सी, बट द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लंबागो. गार्डनर का शरीर में मस्कुलर पेन होने लगा. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसलिए रिंग थ्रो करने का जो एक्सरसाइज है वो हो ही नहीं रहे. और इस तरह से द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया. तो वी विल लर्न द रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास. लेट अस स्टॉप हियर.